الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا قابل قدر حضرت شیخ محترم حضرت مولانا حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ العالیہ شاہی امام شیر پنجاب و معزز علماء کرام قابل قدر صاحبین نظام، کل رات عشاء کے بعد مسجد ابو بکر صدیق میں ایک مختصر نشست ہوئی۔ وقت چونکہ بہت کم تھا اور عنوان اہم تھا، اس لیے بات کو سمیٹ دیا گیا، مختصر کر دیا گیا۔ میں چاہتا ہوں کہ کل کی تقریر کا مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کر اسی بات کو آگے بڑھاؤ، اور جو لوگ تفصیل سے کل کی بات بھائی ٹیک لگا کر سوئیں گے تو وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو جگاؤ، اس کو بھیجو وضو کرنے کے لیے۔ فقہا نے لکھا ہے ٹیک لگا کر سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، آپ کا وضو تو گیا، آپ جا کر وضو بنا کر آئیں گے۔ شیطان یہ چاہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ سلا کر وضو چھڑوا کر نماز پڑھوا کر بھیجے تاکہ وہ ہفتے کی نماز بھی نہ پڑھے۔ اتقوا.com اور سید اندر شاہ قاسمی.in دو ویب سائٹ ہیں، اس کے اندر جسمانی بیماری یا روحانی بیماری اس عنوان سے کل کی تاریخ پر مسجد ابو بکر صدیق لدھیانہ پنجاب کے عنوان سے تفصیل ملے گی۔ مختصر میں عرض کر آج بھی ہمارے یہاں تو جو بیانات ہوتے ہیں وہ ٹیسٹ میچ ہوتے ہیں، 1 گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ، وہ بھی سو رہے ہیں۔ دیکھیے یہ سونے کا وقت نہیں ہے بھائی، مراقبہ مت کیجیے۔ 1 گھنٹہ 30 منٹ 40 منٹ نہ کسی کو سونے دیا جاتا ہے، نہ کسی کو ادھر ادھر دیکھنے دیا جاتا ہے۔ آپ عنوانات دیکھیے، بالکل حالت حاضرہ سے چپتے ہوئے عنوانات ہوتے ہیں۔ انتخابات کی حکمت عملی، موجودہ حکومت آنے کے بعد، اور انہوں نے جو صفائی مہم جو چھیڑی اس کا کیا مطلب، اور سوئس کھاتوں کے اندر ہندوستان کے 70 لاکھ کروڑ روپے جو جمع ہیں، اگر حضرت عمر الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے تو کیا ہوتا، یہ گزشتہ جمعہ یہ عنوان چلا۔ بہرحال
कल मैंने जो बात अर्ज की थी, इंसान को दो किस्म की बीमारियां होती हैं, एक जिस्म से ताल्लुक़ रखती है और एक रूह से ताल्लुक़ रखती है। जिस्म से ताल्लुक़ रखने वाली बीमारी जैसे सर का दर्द है, पेट का दर्द है, बुखार है, मलेरिया है, टाइफाइड है, डेंगू है, फलां है, इसके लिए डॉक्टरों से रुजू किया जाता है, हकीमों से, अतिबा से रुजू किया जाता है और उसका इलाज किया जाता है। और एक वो बीमारी है जो जिसका ताल्लुक रूह से है, जैसे इंसान नमाज छोड़ रहा है, ये रूहानी बीमारी है। दाढ़ी मुड़ा रहा है, ये रूहानी बीमारी है। औरत को बेपर्दा कर रहा है, ये रूहानी बीमारी है। नजर गंदी जगह जा रही है, ये रूहानी बीमारी है। गीबत कर रहा है, रूहानी बीमारी है। झूठ बोल रहा है, रूहानी बीमारी है। सूद खा रहा है, रूहानी बीमारी है। हराम खा रहा है, रूहानी बीमारी है। और मैं बताऊं, इंसान जैसे जैसे गुनाह करता है, गुनाहों से उसका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, मुसालहत हो जाती है, एग्रीमेंट हो जाता है और गुनाह का एहसास मुसलमान से खत्म हो जाता है। जिसको अल्लाह ताला ने कलाम पाक में इरशाद फरमाया कि कल्ला बल राना अला कुलूबि, उनके दिलों पर मैल लग गया। गुनाह करता है एक नुक्ता, दो करता है दो नुक्ता। अब जब सारा दिल सियाह हो जाता है, अब कोई परवाह नहीं कि वो नमाज छोड़ने से क्या हो रहा है, दाढ़ी मुलाने से क्या हो रहा है, जिहाद का इनकार करने से क्या हो रहा है, मुजाहिदों को टेररिस्ट कहने से क्या हो रहा है, दहशतगर्द कहने से क्या हो रहा है। और वो हुकूमत जो बाबरी मस्जिद की कातिल है, वो हुकूमत जिन्होंने माँ और बहनों को हालत हमल के अंदर कत्ल किया, वो हुकूमत के कारिंदे जो मस्जिद के अहाते के अंदर एक एक उम्मत मुस्लिमा की बेटी के साथ इज्तिमाई तौर पर वो हैवानियत का, वो दरिंदगी का मुजाहरा किया, उसकी इस्मत को लूटा कि जंगल के दरिंदे और गलियों में फिरने वाले सूअर और खिंजीर भी इनसे पनाह मांगते हैं। जब गुनाह का एहसास चला जाता है, आदमी ऐसी हुकूमत की शाबाशी देने लगता है और हुकूमत का कारिंदा बन जाता है। गुनाह जब पुराने होते हैं और बढ़ते हैं, गुनाहों का एहसास खत्म हो जाता है। मुझे बताइए, कुरान शरीफ के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया सीमाहुम फी वजूहिहिम मिन असर सुजूद। हदीस पाक में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलियाउल्लाह इज़ा ज़ुकिरल्लाह, चेहरों को देख कर बताया जा सकता है ये हिंदू का चेहरा है, ये काफिर का चेहरा है, ये मुशरिक का चेहरा है। आपका इलाका तो पंजाब का इलाका है और यहाँ का सिख भी दाढ़ी रखता है। दाढ़ी रखने वालों में फर्क है। अल्लाह की कसम किसी नाबीना अंधे को आप छोड़िएगा और एक मुसलमान दाढ़ी वाले को खड़ाइए और एक सिख को खड़ाइए, उसके चेहरे पर दाढ़ी हाथ फेर कर वो कहेगा ये मुसलमान की दाढ़ी है, ये गैर मुस्लिम की दाढ़ी है। मुसलमान की दाढ़ी में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर होता है। रसूल करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत की खुशबू होती है। यहूदी भी दाढ़ी रखता है, यहूदी भी टोपी पहनता है, लेकिन उनके चेहरों को देख कर पता चल जाता है कि ये दाढ़ी इनका इस्लाम से, सहाबा किराम से कोई ताल्लुक नहीं है। कुरान शरीफ के अंदर, हदीस पाक के अंदर बताया गया कि मुसलमान को देखने के बाद पता चलता है कि ये मुसलमान है, ये गैर मुस्लिम है। मुस्लिम औरत जब बाजार में गुजरती है, उसकी बेपर्दगी और उसकी पर्दे को देखकर पता चलता है, उसकी हया को देखकर और उसकी शर्म की चादर को देखकर और उसकी इस्मत और पाकदामनी की देखकर पता चलता है कि इसका नाम फातिमा है, इसका नाम ज़ैनब है, इसका नाम रुक़ैया है। मुझे अल्लाह के लिए बताइए कि जुमा का दिन है, अल्लाह के घर के अंदर बैठे हुए हैं, मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, आईने के सामने अपने आप को खड़ा कीजिए। शादी की महफिलों के अंदर अपनी खवातीन का जो हुलिया होता है, इनको आप मोबाइल के अंदर रिकॉर्ड कीजिए। क्या आपको आईने के अंदर ये चेहरा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम का चेहरा नजर आता है, सिद्दीक के मानने वाले का चेहरा नजर आता है, फारूक के मानने वाले का चेहरा नजर आता है? ये चेहरा वो चेहरा है जिसके हाथ में दामन हजरत सीरा
मकान पीर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह का हो, ख्वाजा मीरी रहमतुल्लाह अलैह का हो। ये चेहरा वो चेहरा है जो कासिम नानकी को मानने वाला हो। ये चेहरा वो चेहरा है जो औलिया किराम के चेहरे से मेल खाने वाला हो। एक अजनबी अगर आपके मोहल्ले में आ जाए, मस्जिद का पता पूछना चाहे, मदरसे का पता पूछना चाहे, हजरत शेर पंजाब दामद बरकातुहुल आलिया का मदरसे का पता पूछना चाहे, वो आपका पाजामा खोल कर, वो आपकी पैंट खोल कर खतना तो नहीं देखेगा। हदीस के अंदर तो ये नहीं कहा गया कि इसके अंदर और बाहर का देखकर फैसला करो। हदीस के अंदर ये कहा गया, औलिया अल्लाह इज़ा ज़ुकिर अल्लाह, इनके चेहरों को देखकर जरूर ताज़ा हो जाता है, अल्लाह के जिक्र की याद ताज़ा हो जाती है, नमाज की याद ताज़ा हो जाती है। मुझे कहने की जरूरत नहीं, आईने के सामने खड़े होकर आप फैसला कीजिए। ये दाढ़ी मुंडा चेहरा, ये फिल्म का हेयर स्टाइल, ये फिल्मों के तरीके, ये गैरों का लिबास, वो जिसमें इस्तिंजा करते हुए आधा पेशाब अंदर और आधा पेशाब बाहर रह जाता है, क्या ये मुसलमानों के तौर तरीके? अल्लाह का अज़ाब नहीं आएगा, अल्लाह का कहर नहीं आएगा, अल्लाह ताला की पकड़ नहीं आएगी। लोग कहते हैं कि अल्लाह क्या कर रहा है, अल्लाह क्या कर रहा है? बाबरी मस्जिद ऐसी हो गई, गाजा में ऐसे हो गया, इसराइल में ऐसे हो गया, फलस्तीन में ऐसे हो गया, मुजफ्फरनगर में ऐसे हो गया, गुजरात के अंदर ऐसे हो गया, और इस सरजमीन के अंदर हलाल जानवर को कटने की इजाजत नहीं। आखिर अल्लाह की ताकत कहाँ गई, अल्लाह की कुव्वत कहाँ गई? अरे अल्लाह ताला के बारे में बात करने वालों, अल्लाह ताला किसी का पाबंद नहीं। ला युसअलु अम्मा यफ़अलु व हुम युसअलून। तुम देखो कि तुम पर क्या जिम्मेदारी दी गई। चेहरा बनाया। आज जुमा के दिन कितने लोगों ने फजर की नमाज पढ़ी बताइए? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन तरकत सलाता मुतअम्मिदन फक़द कफर, जो जानबूझकर नमाज को छोड़ता है कफरा, काफिर हो गया वो। अब ये बात के उलमा ने कहा, एतकादी तौर पर छोड़ता है तो काफिर होता है, अमली तौर पर छोड़ता है फासिक होता है। अल्लाह पर इसको हुज्जत नहीं माना जा सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान के अंदर और कुफर में फर्क करने वाली चीज नमाज पढ़ना और छोड़ना है। कुरान ने कहा, अकीमुस्सलाह वला तकूनू मिनल मुशरिकीन, नमाज कायम करो, मुशरिकीन में से ना हो जाओ। क्या जवाब देंगे आप? क्या जवाब देंगे? क़यामत के दिन एक कदम नहीं हटेगा जब तक कि आप अपनी नमाज के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपनी इनकमिंग के बारे में, अपनी आउट गोइंग के बारे में, अपनी कमाई के बारे में, अपने खर्च के बारे में अल्लाह को जवाब नहीं देंगे। किस चीज के मुसलमान हैं? राशन कार्ड में नाम लिखा दिया, वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम लिखा दिया, इलेक्शन के अंदर नाम लिखा दिया, अल्लाह की फहरिस्त के अंदर भी मुसलमान है। ये चेहरे मुसलमानों के। फुक़हा ने किताबों के अंदर लिखा है कि अगर मुसलमानों का और गैर मुस्लिमों का जिहाद हो जाए, और अगर कोई मुसलमान चेहरा औरतों की तरह हो, सप्पन सप्पा, लिबास हो गैर इस्लामी काफिरों मुशरिकों की तरह, और वो अपने घर से दुकान जा रहा था, रास्ते में जिहाद हो रहा था, एक मुसलमान मुजाहिद ने उसको हिंदू समझकर कत्ल कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फुक़हा ने लिखा है कि मुजाहिद पर, मुसलमान पर कत्ल का क़िसास नहीं होगा, बदला नहीं लिया जाएगा, इसलिए कि जाहिर में ये यूनिफॉर्म में नहीं था, ये लिबास के अंदर नहीं था। आज रूहानी बीमारियों से मुसलमान मुसालहत कर चुका है, उसे इस बात का एहसास नहीं। एक रास्ते में जाते हुए कलाम पाक का बरक़ मिल जाए, सफ़ा मिल जाए, ये बेअदबी समझता है, गुस्ताखी समझता है। लेकिन अपने हाथ से उस तरह खरीद कर, अपने हाथ से ब्लेड खरीद कर, नहार दो 1.25 लाख पैगंबरों की सुन्नत, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे अनवर के खुशबूदार
اور मुअक्कर बालों को अपने चेहरे से निकाल कर पेशाब की नाली में डालता है। आज रसूल पर जुम्मा के दिन मेरे शेख मोहतरम के सामने अल्लाह की इज्जत और जलालत की कसम खा कर कहता हो, वो काफिर था, वो इस्लाम का दुश्मन था, वो मुसलमान का दुश्मन था, उसे हक था कि वो कलाम पाक की तौहीन करे, उसे हक था कि कलाम पाक के पटाखे वो दिवाली के अंदर फोड़े, उसे हक था कि कलाम पाक के अंदर इंजील का गोश्त रखकर दारुल के सदर गेट पर रख कर चला जाए, उसे हक था, इसलिए उसका धर्म वो कलाम पाक को अल्लाह का कलाम नहीं मानता, वो कलाम पाक को मुकद्दस नहीं मानता। अरे मुसलमानों, तुम्हारी माओं के मरने के बाद इसी कलाम पाक से तो अपनी माओं की मग़फ़िरत कराते हो, तुम्हारे बापों के मरने के बाद इसी कलाम पाक की तिलावत कराकर इसाल सवाब करते हो। यही वो कलाम पाक है जो फजर के अंदर, ज़ोहर के अंदर, असर के अंदर, मग़रिब के अंदर और इशा के अंदर पढ़ा जाता है। यही वो कलाम पाक है कि जिसको जमीन आसमान ने उठाने से इनकार कर दिया, वह हमला इंसान, इंसान ने उठा लिया। जमीन का ईमान इस पर हो ना हो, आसमान का ईमान इस पर हो ना हो, और मखलूक का ईमान उस पर हो ना हो, आपका तो ईमान है, आप तो इसको मुक़द्दस मानते हैं। एक कलाम पाक का वर्क अगर जमीन पर मिल जाए, एक शराबी, एक कबाबी, एक फासिक, फाजिर, एक गुनहगार उसको आंखों से लगाता है, लगाने का हक है। लेकिन मैं ये कहता हूं, इससे बड़ी गुस्ताखी, इससे बड़ी बेअदबी, इससे बड़ी जुर्रत, हरामजादी ये है कि कोई मुसलमान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपने चेहरे से निकाल कर पेशाब की नाली के अंदर डाले, पाखाने की नाली के अंदर डाले। वो चेहरे उलमा ने लिखा कि इनको सलाम करने की भी इजाजत नहीं है, चाहे तो सलाम किया जा सकता है, चाहे तो सलाम नहीं किया जा सकता। मेरे कहने का मतलब ये है, इस बुराई का एहसास खत्म हो चुका है। उलमा ने लिखा है कि जुमा की नमाज के शुरू होने के बाद हलाल कारोबार भी हराम हो जाता है। कपड़े की तिजारत हलाल है, जूते की तिजारत हलाल है, बर्तन की तिजारत हलाल है, मिठाई की तिजारत हलाल है। इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। कुरान ने कहा कि ये कारोबार भी हलाल जो है वो हराम हो जाता है, छोड़ने का हुक्म दिया गया। अगर कोई मुसलमान नहीं छोड़ता है, नमाज को आखिर वक्त में आता है, इस अतहियात में आता है, अरबी खुतबा शुरू होने के बाद आता है, वक्त शुरू होने के बाद कारोबार बंद नहीं करता। खिंजीर का गोश्त खाना और मरे हुए गधे का गोश्त खाना, चोरी का माल खाना और कारोबार का पैसा खाना दोनों बराबर है। बताइए, हराम के पैसे, हराम की कमाई पेट के अंदर डालेंगे तो फिर कहाँ नूरानियत बाकी रहेगी। हजरात, ये वो रूहानी अमराज हैं जो मुसलमानों के अंदर पैदा हो चुके हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात ये है, इसका एहसास भी नहीं है। मैं अगर यहाँ एक बात कहूँ, कुछ देर के लिए सीने पर चट्टान रखकर, पत्थर रखकर, अपने दिल की हरकतों को रोककर, अपने खून के दौरान पर काबू पाकर अगर कोई ये कहे क्या तुमने से तैयार है कि अपनी माँ के साथ मुंह काला करे, कहेंगे मौलाना क्या बात कर रहे हैं, आपको जुमा का बयान देने के लिए बिठाया गया है, ये गालियां देने के लिए बिठाया गया है। मैं ना कहूँ, मेरा बाप ना कहे, दारुल का मुफ्ती ना कहे, अहमद रजा खान साहब ना कहें, मौलाना मौदूदी साहब ना कहें, मरकज निजामुद्दीन के हजरत जी ना कहें, अगर वो कहें, इनकी बात का इनकार भी किया जा सकता है। चलो अबू हनीफा की बात का इनकार किया जाता है रहमहुल्लाह ताला, चलो इमाम शाफी की बात का एक वक्त इनकार कर ले, शाह वलीउल्लाह की बात का इनकार कर ले, शेख अब्दुल कादिर जीलानी की बात का इनकार कर ले, हजरत जुनैद बगदादी की बात का, इसलिए कि वो पैगंबर तो है। इमाम शाफी को नहीं मानेंगे, इमाम अहमद में पना लेंगे, इमाम अहमद से नहीं मानेंगे, इमाम मालिक के दामन में पना लेंगे, इमाम मालिक की नहीं मानेंगे, इमाम जो है अबू हनीफा के दामन कहीं पना मिलेगी। लेकिन मुझे ये बताओ मुसलमानों, जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़कर मुसलमान को कहीं पना मिल सकती है? काफिर हो जाएगा, इस्लाम से निकल जाएगा और उसका अंजाम वो होगा जो मुनाफिक
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करा कर हजरत उमर बिन खत्ताब के पास आया था और हजरत उमर बिन खत्ताब ने पूछा था कि क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुमने फैसला करा लिया? सिद्दीक से फैसला करा लिया? कहा कि इन्हीं के हक में दिया है, मुझे आपसे अदल व इंसाफ की उम्मीद है। फैसला सुने बगैर, मुकदमा सुने बगैर, मुद्दई का दावा सुने बगैर आप घर के अंदर गए और बयान से तलवार निकाली और उसका सर कलम कर दिया और कहा जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैसले को ना माने उसका अंजाम यही होना चाहिए। तुम बच गए हो, गुलाम फिरके की हुकूमत चल रही है, तुम बच गए हो, सेकुलर हुकूमत में रह रहे हो, तुम बच गए हो, देवी देवताओं के साये में रह रहे हो, तुम बच गए हो, इस्लाम मुसलमान दुश्मन और फिरका परस्तों के साये के अंदर सांसें ले रहे हो। हजरत उमर अल खत्ताब होते, हजरत मुल्ला उमर होते, हजरत उमर अब्दुल अजीज होते, हजरत सिद्दीक अकबर होते, हजरत उस्मान गनी होते, खुदा जाने कितनों के सर खत्म कर दिए जाते। गुनाहों से मुसालहत कर रखी है। हदीस पाक में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सूद के 70 से ज्यादा दर्जे हैं। सूद है, सूद के मालिक है। और इन्होंने क्या नाम दिया? ब्याज। ब्याज के माने सुफेदी है। शरीयत ने कहा वो काला है, इन्होंने कहा वो इंटरेस्ट है, फायदा वाली चीज है। और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 70 से ज्यादा अगर एक अदना दर्जे के टुकड़े किए जाए, उसमें जो छोटा जर्रा होता है वो अपनी माँ से 36 मरतबा 36 टाइम उसे मादर जात बरहना कर कपड़े निकाल कर जिना करने के बराबर है। कितने ताजिर, कितने कारखाने वाले और कितने सरमायादार जिन्होंने होम लोन ना लिया हो, बिजनेस लोन ना लिया हो, फिक्स्ड डिपॉजिट ना कराई हो और बैंक से कर्जा ना लिया हो। बताए भाई, मैं झूठा, मेरा खानदान झूठा, इमाम अबू हनीफा के मसलक से हटकर इमाम शाफी के मसलक में जंग किया जा सकता है। इमाम शाफी के मसलक से जंग कर आप इमाम मालिक में जा सकते हैं। इमाम मालिक के मसलक को छोड़कर इमाम अहमद इब्न हंबल में जा सकते हैं। साबिरिया को छोड़कर चिश्तिया में जा सकते हैं। चिश्तिया को छोड़कर सहरवर्दिया में जा सकते हैं। सहरवर्दिया को छोड़कर कादिरिया में जा सकते हैं। मदीने को छोड़कर कहाँ जाओगे? मदीने को छोड़कर जाओगे अमेरिका जाओगे, सुअर खाने वाली कौम के पास। मदीने को छोड़ोगे, कुत्ते खाने वाली कौम के पास जाओगे। मदीने तैयबा को छोड़ोगे, अपनी माँ से मुंह काला करने वाली कौम, अपनी बीवियों, अपनी बहनों, अपनी बेटियों से और इन माओं को सुअरों के पास भेजने वाली, अपनी बेटियों को कुत्तों के पास भेजने वाली कौम के पास तुम जाओगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला है, माँ से 36 मरतबा जिना करने के बराबर है। गली के अंदर जो कुत्ता कुतिया के साथ काम करता है किसी मुसलमान को एहसास इस बात का? नमाज पढ़ते हैं, लज्जत मिलती है आपको, अल्लाह का नाम लेते हैं, मजा आता है आपको। मजनून को कहिए, पूछिए, वो लैला जिसके पेट के अंदर पेशाब की पोटली है, पाखाने की थैली है, जिसके नाक के अंदर गलाजत है, आंख के अंदर मैल है, जिसके जिस्म के अंदर गंदा खून दौड़ रहा है, वो कहता है कि लैला लैला नाम लेने के अंदर मुझे मजा आ रहा है। अमुर्रु अल दियारी दियारा लैला व उक़ब्बिलु ज़ल जिदारा व ज़ल जिदारा व हुब्बु दियारी फी क़ल्बी वलाकिन हुब्बु मन सकनत दियारा। अरे मजनून, जैसा तू गली के संगरेजों को और गली के पत्थरों को, कंकरियों को तो चूम रहा है। उसने कहा कि नहीं, मुझे इनसे मोहब्बत नहीं, मेरे लैला के कहीं कदम इन कंकरियों पर पड़े हुए होंगे। मजनून को मजा मिलता है लैला की गली से गुजरने का, मजनून को मजा मिलता है लैला का नाम लेने का, मजनून को मजा मिलता है लैला का तस्करा करने का। अजान हो रही होती है, जालिम तेरी टीवी बंद होती है, नाच गाना बंद होता है, तेरी माँ नाचती है, तेरी बेटी नाचती है, उसके अंदर रंगिया जिन्होंने उम्मत के नौजवानों की शर्म की हया का जनाजा निकाल सका, जो ईमान पर डाका डाल रहे हैं। नौजवान के गले में लाठिक, किसकी तस्वीर? साफ खुला फिल्म के अंदर काम करने वाली हीरोइन की तस्वीर। लड़कियों के गले में लाठिक, किसकी तस्वीर? फुला खान की तस्वीर,
फलां क्रिकेट प्लेयर की तस्वीर, फलां फुटबॉल प्लेयर की, हॉलीवुड की, बॉलीवुड की, कलाकार की, अदाकार की तस्वीर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरु मा मन अहब्बा, मरो क़यामत के दिन इन्हीं जहन्नमी कुत्तों के साथ तुम्हारा अंजाम होगा, तुम्हारा हशर होगा। और ये लोग तो जन्नत में तो जा नहीं पाएंगे, जहन्नम में जाएंगे। और हदीस में आता है अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह ताला दुनिया में नाचने गाने वाले, जिना करने वाले, बदकारी करने वाले, इनकी शर्मगाहों को उठाकर इनकी पेशानी पर लगा देंगे। कोई बात मेरी नहीं, मेरे बाप की नहीं, मेरे शेख की मोहतरम की नहीं, कुरान और हदीस की बात कर रहा हूँ। क़यामत के दिन उठोगे तब जो फिल्मों का देखा देखी साबुन खरीदा, फिल्म को देखकर खरीदा, बीवी का रंग बनाना है एडवर्टाइज को देखकर खरीदा, ड्रामे को देखकर खरीदा, और यहाँ मिंबर रसूल से शेख चीखते रहे लोगों मुसलमान बनो, नबी के गुलाम बनो, सुन्नतों से मोहब्बत करो, वो कोई असर नहीं। किस तरह भाग रहे हो मुसलमानों। और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हजरत शाही इमाम शेर पंजाब हजरत मौलाना हबीबुर रहमान साहब, अल्लाह ताला का मैं करोड़ों मरतबा शुक्रिया अदा करूं तो भी शुक्र अदा नहीं होगा। हजरत ने मुझे अपने दामन में ले लिया, अपने सिलसिले से मुझे जोड़ लिया। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, कुरान शरीफ के अंदर नमाज का हुक्म है, नमाज सिखाने वाले इदारे मिलेंगे। कुरान शरीफ के अंदर तालीम कुरान का हुक्म है, सुफ़ा कबूतरे की शाखें मिलेंगी। कुरान शरीफ के अंदर दिलों के तज़किये का हुक्म है, वही ज़कीहिम, आपको खानकाहें मिले, खानकाह है नहीं है, मदारिस है नहीं है, मकातिब है नहीं है, नूरानी क़ायदा पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है, मुहद्दिस नहीं है, मुफस्सिर नहीं है, फ़क़ीह नहीं है, मुफ्तियान किराम नहीं है। मुझे ये बताओ मुसलमानों, तुम कितने खुश नसीब हो, लुधियाना के, पंजाब के मुसलमानों। कलाम पाक के अंदर एक आयत है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, कि जिसने अपने जान और माल को बेचकर फरोख्त कर कर बदले में अल्लाह से जन्नत को ले ली। हदीस के अंदर एक हदीस है, अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो तलवार लगाकर, नेजा लगाकर, हथियार लगाकर नमाज पढ़ता है, 7 से लेकर 70 गुना उसकी जो है नमाज की सवाब के अंदर इजाफा हो जाता है। मुझे बताओ, खानकाह मिल जाएंगे, मदारिस मिल जाएंगे, मकातिब मिल जाएंगे, अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा कर गए, तो आपने न दौलत को छोड़ा, न माल को छोड़ा, न बाग को छोड़ा, न कोठी को छोड़ा, न बंगले को छोड़ा, न तिजोरी को छोड़ा, न बैंक बैलेंस को छोड़ा। अगर आपकी विरासत है 11 तलवारें पूरे हिंदुस्तान के अंदर, ऐसा आलिम बताओ जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलवार की सही की सुन्नत को अदा कर रहा हो। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, अपने नबूवत जिंदाबाद, अपने नबूवत जिंदाबाद, आदियानी जिंदाबाद, आदियानी जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। मशरिक़ से लेकर मग़रिब तक, शिमाल से लेकर जनूब तक नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक पर जो खत्म नबूवत का ताज पहनाया गया, उस पर एक फिरका डाका डाल रहा है, उसके हीरे जवाहरात को लूट रहा है। आप खुश नसीब हैं मुसलमानों कि खत्म नबूवत का मुहाफिज और पहरेदार मौलाना हबीबुल्लाह और उनके खानदान की शक्ल में अल्लाह ने यहाँ आपको वो अमानत दे रखी है। मेरे बाप की हिम्मत नहीं है कि तलवार लेकर घूमे और ये कहें कि मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम विश्वास सब रख सकता है, तस्वीर सब रख सकते हैं, अमामा सब बांध सकते हैं। हिम्मत हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को लेकर के, इस सुन्नत को अदा करने की जुर्रत करे और हिम्मत करे। हजरात, कलाम पाक के अंदर 114 सूरतें हैं। इन 114 सूरतों के अंदर सूरह तौबा भी है, इन 114 सूरतों के अंदर सूरह अनफाल भी है। हजारों मदारिस हैं, लाखों मकातिब हैं,
آپ وہاں جائیے گا، سورہ توبہ کی تفسیر سنیے، سورہ انفال کی تفسیر سنیے، وہاں آپ کو مکس اور ری مکس تفسیر آپ کو ملے گی، زندہ تفسیر سورہ توبہ کی اور زندہ تفسیر سورہ انفال کی۔ اگر پانی ہے تو شاہی مسجد شاہی امام کے پاس آپ کو ملے گی۔ مساجد کے اندر فضائل اعمال، اپنے اکابرین کے مکتوبات اور اپنے اکابرین کی لکھی ہوئی کتابیں، لیکن پورے ہندوستان کے اندر وہ مجلس مسجد بتا دیے کہ جہاں پر وہ کتاب آپ خود تحقیق کیجیے گا اس کتاب کو کس نے لکھا، کہاں لکھا، اور حضرت سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قرآن پاک کے پہلے مفسر ہیں، اس وقت سے لے کر اب تک کلام پاک پر سائنسی نقطۂ نظر سے، طبی نقطۂ نظر سے، جغرافیہ کے نقطۂ نظر سے، جانوروں کے اعتبار سے، حیوانات کے اعتبار سے، جمادات کے اعتبار سے اور نباتات کے اعتبار سے، ارض کے اعتبار سے، فرش کے اعتبار سے، جنات کے اعتبار سے، حیوانات اور جو ہے فرشتوں کے اعتبار، ہر اعتبار سے کلام پاک سے استفادہ کیا گیا۔ لیکن بدری تفسیر، احد والی تفسیر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پر پتھر باندھنے کی تفسیر، نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ والی تفسیر اگر کسی نے لکھی ہے، وہ تفسیر آپ کی مسجد کے اندر اس کو پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے۔ میرا چیلنج ہے، ہندوستان کے اندر مشرق و مغرب، شمال و جنوب کے اندر بڑے بڑے ادارے ہیں، تقریر زور کی میں نہیں کر سکتا ہوں، شعلہ بیان نہیں کر سکتا ہوں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کتاب کو لے کر میں سفر میں بھی جا نہیں سکتا، اور وہ کتاب یہاں کھلے عام پڑھی جا رہی ہے اور سمجھائی جا رہی ہے۔ حضرات، وثروت السلامہ الجہاد، یہ دین کا سب سے بلند اور وہ بالا شعبہ ہے کہ جس کے راستے کے اندر اگر کوئی ختم بھی ہو جاتا ہے تو قرآن نے سنسر لگا دی، پابندی لگا دی، ظالم تیرا پرائم منسٹر کہتا ہے تو کہہ دینا مردہ، تیرا شیخ الحدیث مر جائے تو کہہ دینا مردہ، تیرا مفسر بن جائے تو کہہ دینا مردہ، تیرا امام مر جائے تو کہہ دینا مردہ، اور کہا کہ اس راستے کے اندر جو مرے ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، خبردار خبردار، اس کی توہین کرنا، اس کی بے عزتی کرنا تو دور کی بات، اس کو مردہ کہنے کی بھی تجھے اجازت نہیں ہے۔ پابندی لگا دی اور سنسر لگا دیا، اب لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرات، یہ وہ علماء کرام کا طبقہ ہے، مجھے کچھ لینا دینا نہیں شیر پنجاب سے، وہ کوئی مجھے وظیفہ نہیں دیتے، مجھے کوئی چندہ نہیں دیتے، میرا ان سے کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، لیکن ان کا تلوار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سے اور سورہ انفال سے جو رشتہ، سورہ توبہ سے جو رشتہ ہے، حضرات مدارس والے اگر ناز کرتے ہیں تو وہ اپنے شیخ الحدیث پر کرتے ہوں گے، مفسر پر کرتے ہوں گے، اپنے دارالفتہ پر کرتے ہوں گے، اپنے دارالقضا پر کرتے ہوں گے۔ ہندوستان کی کوئی مسجد اگر ناز کرتی ہے تو اپنے امام کی امامت پر ناز کرتی ہوگی، خطیب کے خطابت پر ناز کرتی ہوگی۔ خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم، اگر ان اللہ اشترى من المؤمنین والا طبقہ نہ رہے تو مسجدوں سے اذان گونج نہیں سکتی، منبر کے اندر خطبہ نہیں ہو سکتا، صفہ چبوترے پر تعلیم نہیں ہو سکتی، محراب کے اندر نماز نہیں ہو سکتی، قال اللہ قال رسول کا درس نہیں ہو سکتا، خانقاہ کے اندر اللہ کی ضربیں نہیں لگ سکتی۔ اگر دین زندہ ہے تو ان کے خون کے بدلے زندہ ہے، ان کی قربانیوں کے بدلے زندہ ہے، اس لیے اللہ نے ان کے مقام کو بلند کیا۔ ہم 2-4 مرتبہ مکھی کو ہٹا دھکا دے نماز، 2-4 مرتبہ مچھر کو ماریں، فقہا کہتے ہیں کثرت عمل کی وجہ سے تیری نماز فاسد ہو گئی۔ ظالم اللہ کے دربار میں کھڑا ہے کہ مکھی مارنے کھڑا ہے؟ اللہ کے دربار میں کھڑا ہے، مچھر مارنے کھڑا ہے۔ اور ان کو کہا کہ ایک رکعت وہ جماعت آ کر پڑھے اور پھر وہ پڑھ کر چلی جائے، اور دوسری رکعت وہ لوگ آ کر پڑھیں، خون نکل رہا ہے، باتیں چل رہی ہیں، مورچہ سنبھالا جا رہا ہے، اور ان کو کہا گیا اسپیشلٹی آپ کو جو ہے فیسلٹی دی جا رہی ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، آپ کے لیے معاف ہے۔ ان کے صدقے میں امت کو تیمم ملا۔ حضرات، یہ وہ ادارہ، یہ وہ مدرسہ، یہ وہ شیخ طالب جس کی نسبت سورہ انفال سے ہے، سورہ توبہ سے ہے۔ ہماری روحانی بیماریوں کا علاج، جیسے دنیا کی بیماریوں کا علاج ڈاکٹروں سے ہوتا ہے، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، جیسے 5 دین کی بنیادیں ہیں،
اب इस जमाने के अंदर दीन की अहम तरीन बुनियादों में मुसलमानों के लिए अहम तरीन जरूरत है कि वो शेखों से और उलमा और सुलहा से और औलियाए किराम से अपने दामन को मजबूत पकड़ें, वरना ये कौम ना से जिना करवा कर खुश होगी। करवा ले नहीं करवा रही, सूद खाना, सूद का लेना, सूद का गवाह बनना, सूद के लिए बैंक के लिए किराए पर बिल्डिंग देना, ATM के लिए कमरा देना, ये माँ को जिना करवाने के बराबर है। आज रात इंशाअल्लाह मालिक कोटला के अंदर हम आपको बताएंगे कि किन साजिशों से, मकर और चाल और गिरफ्तारियों से उम्मत मुस्लिमा के पेट के अंदर हराम चीजों को दाखिल किया जा रहा है, इस्लाम से मुर्तद करने की साजिश की जा रही है। बहरहाल हजरात, आने वाला जमाना बहुत नाजुक जमाना है, हसास जमाना है, पुरफितन जमाना है, पुरखतर जमाना है। और हदीस पाक में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक जमाना ऐसा आएगा फितने का कि जिंदा इंसान मरे हुए इंसान की खबर पर हाथ रखकर कहेगा कि काश मैं इस खबर के अंदर होता। हालात बनते जा रहे हैं, समझ सको तो समझो, पहचान सको तो पहचानो। हिंदुस्तान की 1947 की तारीख से लेकर अब तक हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो इफ्तार की दावत दिया करता था। हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर होता था वो ईद की मुबारकबादी देना एक उसकी वजारत का हिस्सा होता था। हिंदुस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि इफ्तार की पार्टी भी नहीं दी गई और ईद की मुबारकबादी नहीं दी गई। उल्टा ये किया गया कि दिवाली की मुबारकबादी दी गई और हिंदुस्तान का वजीर आजम दिवाली मनाने श्रीनगर, जहां 100% मुसलमान हैं, उस इलाके में जाकर पटाखा फोड़ा। ये सब किस बात के इशारे हैं? ये मुल्क किस तरफ जा रहा है? इसलिए सिवाय इन उलमाए किराम से अपने दामन को मजबूत करने के बिलखुसूस ऐसे उलमाए किराम हर जमाने के अंदर उलमाए हक्कानी, उलमाए शैतानी रहा करते हैं। उलमाए हक्कानी, उलमाए शैतानी में फर्क ये है कि उलमाए हक्कानी उम्मत के लिए जीते हैं, उनके लिए मरते हैं। उनका ताल्लुक सूरह अनफाल, सूरह तौबा से होता है। इनसे अपने रिश्ते को मजबूत करें, अपने ताल्लुकात को मजबूत करें। क्या तकाज़े हैं मदारिस के, इस रास्ते की क्या जरूरियात हैं? जेल के अंदर मजबूर मजलूम जो कैदी औरतें हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं और नौजवान हैं, बेकसूर दहशतगर्दी के इल्जाम में उनके अंदर डाल दिया गया है। कौन आज उनकी फिक्र कर रहा है? बेकसूर किसी नौजवान को गिरफ्तार किया जाता है। आलिम का काम तो नूरानी कायदा पढ़ाना, तो तजवीज़ पढ़ाना। उसको क्या जरूरत कि जेल में जाकर मस्जिद की तामीर करे, घरों घर जाकर वो घरों की हालात का जायजा ले। आप हजरात कुछ नसीब हैं, उलमाए हक्कानी रब्बानी को पहचानें, कदर करें और उनसे अपने राबिते को मजबूत करें। आप जिस तहरीक से भी वाबस्ता हो, तबलीगी जमात से हो, जमात इस्लामी से हो, बरेली से हो, फलां से हो, भाड़ में जाए वो झगड़ा। अब झगड़ने का वक्त नहीं, मारने वाला हमें कलमे की निस्बत से मारता है, हम कलमे की निस्बत से मुत्तहिद हो जाए और उलमा से वाबस्ता हो जाए। आने वाले हालात बड़े नाजुक तरीन हालात हैं। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह तबारक ताला उम्मत मुस्लिमा को फितनों से हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला हमें चाहते ना चाहते हमारे पेशानी के बाल पकड़कर दीन के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला कुरान के लिए कबूल फरमा ले। अल्लाह दीन की सरबुलंदी के लिए हमारी जानों को कबूल फरमा ले। अल्लाह इज्जत की जिंदगी दे, अल्लाह इज्जत की मौत दे, अल्लाह कलमे की मौत दे, अल्लाह शहादत की मौत दे। वाखिर दाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।